Okay, guys, can you see my screen? Okay. Is my screen visible? Okay, okay, cool, cool. So that day, Automation Hub Selenium project, this is some error is coming over here. So I'm gonna delete this. So why is some error coming? Let me check. I don't know why this error is coming. Uh, Probably I did something, so I'll delete this. Not a problem. Okay. So I'll just maintain everything in this small Java batch. That day, remember, I just created this small program, okay, this main method. There are few things that you need to know before we proceed. These are very important. See, I will not tell you something which is not important. I will tell you something. Why I'm asking you to attend my training sessions is because in the training sessions, you will learn something which are also very important in terms of interview perspective. अगर आप मेरे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हो तो आपका इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, मैंने यहाँ पर ये जो मेन मेथड टुडे अब हम लोग क्या टॉपिक में करेंगे वो बता देता हूँ। टुडे विल लर्न एवरीथिंग अबाउट व्हाट आर access modifiers, what are the different types of access modifiers. We'll learn a little bit about keywords, okay. We'll learn a little bit about return types, not in detail because return types में अलग टाइम पे बताऊंगा, and mostly we'll learn about main method, ठीक है। ये तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो ये तीन चीज मेन मेथड के इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या क्या इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं वो सारे सवाल भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कंसिडर दिस स्मॉल थिंग। विंडोज आर ओके। सो हमारा मेन मेथड होता क्या है? दिस इज आवर मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप ऐसे लिखते हो स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज आवर मेन मेथड और ये आपकी मेन मेथड की बॉडी होती है, राइट। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? व्हाट इज दिस पब्लिक? दिस पब्लिक इज नथिंग बट, मैंने आपको उस दिन बताया था, देर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज, ये जो है ना इसे हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसे हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। ऐसे एक्सेस मॉडिफायर और क्या क्या है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। Public is an access modifier. Static is what? Static is nothing but a keyword. This particular guy is nothing but a keyword. ये keyword है। What are keywords? I'll tell you. Okay. Void क्या है? Void is nothing but a return type. This is a return type. Everything should have a return type. So every method should have a return type. So for the main method, return type is void. Why main method has only void kind of return type? What are the different types of return type? Can main method have any other type of return type? Something like that we'll discuss. And what is this main? Main is nothing but the naming convention of this main method. So this is just the name of this method. इसका और कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इस नाम के साथ ही एक सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज दिस स्ट्रिंग? दिस स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज ए स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा। इट इज ए स्ट्रिंग क्लास। एंड व्हाट इज दिस थिंग? दिस arg0 arg square, what is this? This is nothing but array of string objects. ये सारी, see, this is what a basic your a particular main method looks like. And what is main method? Main method is nothing but your execution womb in your Java program. इसे हम एग्जीक्यूशन वोम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ही कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कहीं और होगा ही नहीं। सो मेन मेथड इज दिस is main method. If somebody asks you what is main method, you tell them it is the execution womb in your Java program.
यहाँ पर ही एग्जीक्यूशन होगा. इफ यू मेक सम अदर मेथड, एग्जीक्यूशन वहां पे नहीं होगा. दैट मेथड कैन ओनली बी कॉल्ड एंड रेफर्ड. Execution will only happen in main method. This is very very important. ठीक है. So now let us understand something else. पहले we'll understand something about these so called access modifiers. So I'll make a notepad. हमारे पास basically there are four access modifiers. So we are learning access modifiers. Okay, the first one, the most popular one is public. Okay, and make sure access modifiers have proper upper case lower case maintenance. आप इसको अगर S से लिखोगे P capital, वो काम नहीं करेगा. Okay, you have to make sure. See, Java मैं पहले भी बोल चुका हूँ, Java is a case sensitive language. बहुत लोग unnecessary चीज़ें लिखते हैं कि ठीक है, लेकिन नहीं ठीक है. आप हमेशा प्रैक्टिस में भी, नोटपैड पे भी, कहीं पर भी केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखोगे. एसक्यूएल प्रोग्रामिंग नहीं है कि कुछ भी लिख दो. केस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में. सो अगर आप बाहर बाहर कहीं प्रैक्टिस करोगे ना, कोड के अंदर फंसोगे. इसलिए जहां भी प्रैक्टिस करो, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखो. कोई आने की कोशिश कर रहा है क्या? एक सेकेंड. somebody is trying to get in. No. Okay, so this is one access modifier. The second access modifier is, you can call it private. The third one is protected, and the fourth one is default. Excuse me. So these are the four different kinds of access modifiers. ठीक है. Okay, so now one more question. This access modifier, this public, is also a keyword in Java. I'll tell you what keywords are, but इतना जान लो, public word is also a keyword in Java. Okay, और इसका सबसे maximum scope है. Maximum scope means maximum reach, maximum vicinity, whatever you can say. This particular access modifier has the maximum scope compared to other three. ठीक है. ये इसका जो vicinity है, reach है, scope है, compared to these three, this has the highest scope. ठीक है. And what all things can be made public? You can make classes, you can make them public, you can make methods as public. Okay, you can also make certain members as public. They could be data members, or anything. You can make certain members as public as well. ठीक है. और there is no restriction. एक ये बहुत important है. There is no restriction in accessing public. जो कि इन तीनों में there are certain restrictions that you have to adhere to, but इसके साथ कोई restriction. This is खुला सांड. It can do anything anywhere. ठीक है. So this is what mostly the it is little bit about the public access modifier. Now when it comes to private, private का scope is very limited to one particular class. ठीक है. So अच्छा, one more thing, this is also a keyword. And all the keywords which you write in Java, at least in Eclipse, it will be in maroon or dark pink, whatever color. जो भी keywords होते हैं ना, देखो मैं कोड पे गया ना, देखो ये जो भी डार्क पिंक या मरून, जो भी कलर बोलते हो ना आप, ये सारे पिंक में होते हैं. ठीक है, वो कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो प्राइवेट एक ऐसा कीवर्ड है विच इज ऑल्सो, प्राइवेट इज एन एक्सेस मॉडिफायर विच इज ऑल्सो ए कीवर्ड इन जावा. ओके. नाउ अब प्राइवेट को हम किस किस को बता, आप मेथड्स को भी प्राइवेट बना सकते हो. ठीक है. मेंबर्स को भी प्राइवेट बना सकते हो. मोस्टली डेटा मेंबर्स को आप प्राइवेट बना सकते हो. क्लास भी प्राइवेट बन सकता है. जनरली ये तीनों ही हर जगह बनते हैं, बिकॉज मोस्टली यही चीज़ आपको कोड में बना के रखते हैं. ठीक है. नाउ इसका एक, the main gist of the story of private is, the members or these data members whatever declared as private are accessible only within the class. अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी प्राइवेट बना दिया, तो मैं मान लो ये क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम.
मैं कुछ भी यहाँ पे बना दिया, लेट्स से प्राइवेट इंट आई इक्वल टू लेट्स से 10, मैं कुछ ही बना दिया, तो ये जो इंटीजर आई का स्कोप है ना, वो इसी क्लास बॉडी में रहेगा। ये दूसरे पैकेज के दूसरे क्लास में एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। इसका लिमिटेशन इसी क्लास में है, लिमिटेड टू दिस क्लास ओनली, इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। बट वही चीज अगर आप इधर पब्लिक बोल दोगे, सॉरी, अगर वही चीज मान लो मैं एक पब्लिक बना दूं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लेट्स से अजय, मैं इसको यहाँ पब्लिक बना दूं ना, दिस कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, विथ accessed anywhere in the whole project. Any class, any package can access this under certain rules and regulations. Of course, there is always a rule and regulation to access public. Now, ये हो गया इसका. Okay, now let me go back to the topic. So this is fine. Now, protected private के बारे में और क्या चीज़ है? कोई भी दूसरा क्लास हो ऑफ द सेम पैकेज विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। मैंने बोला ना, प्राइवेट सिर्फ सेम क्लास के लिए होगा, सेम पैकेज के दूसरे क्लास के भी अलाउड नहीं है, दूसरा पैकेज तो छोड़ दो, ठीक है। अब बाकी और एक चीज़ याद रखो, इंटरफेसेस को आप प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि उसे क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एनक्लोजिंग क्लास के अंदर रहता है। अच्छा, मैं अभी इंटरफेस के बारे में बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। सो इतना ध्यान रख लो कि अगर आप कुछ भी प्राइवेट बनाते हो ना, उसी क्लास में ही सीमित रह जाएगा इसका स्कोप, ठीक है। देर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, दैट इज समथिंग अबाउट प्राइवेट। प्राइवेट इज समथिंग जो भी आप सिक्योर्ड प्रोजेक्ट के पे काम करते हो तो उस पे ऐसे ही होता है। प्रोटेक्टेड इज ऑल्सो ए कीवर्ड, ओके। यहाँ पर जो मेंबर्स या फिर जो क्लासेस जो भी मेथड्स वगैरह हैं, वो सेम पैकेज में एक्सेस हो सकते हैं, लाइक इन द सेम पैकेज they can be accessed by different subclasses। और देखो, ये सेम पैकेज कैन बी एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, सॉरी, इन द सेम पैकेज दे कैन बी एक्सेस्ड, ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, दे कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम पैकेज एज वेल एज सब क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस। सो लेट्स से जावा बेसिक्स आपने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड लिखा, प्रोटेक्टेड फ्लोट एफ, नहीं, प्रोटेक्टेड कैर सी इक्वल टू ये, okay, now this protected character, this can be accessed like in, यहाँ पर अगर आप मल्टीपल क्लासेस बनाते हो, जैसे फर्स्ट जावा प्रोग्राम, सेकंड जावा प्रोग्राम, थर्ड जावा प्रोग्राम, तो सेम पैकेज में एक्सेस हो पाएगा। और दूसरे पैकेजेस में, और सब क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस, अगर आप लूप्स में भी और एक क्लास बनाओगे तो यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा। एक सेकंड, लेट मी टेक माय डॉग आउट, रोमियो आउट। So this particular C or this particular character C can be accessed in other, यहाँ पर और एक अलग पैकेज में क्लास बनाओगे तो वहां से भी इसको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। एनीवेज, हम लोग ज्यादा प्रोटेक्टेड यूज नहीं करते हमारे ऑटोमेशन कोड में, अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और सिक्रेटिव प्लेस। बट स्टिल हमें इतना जानना जरूरी है, बिकॉज इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू डिफॉल्ट, अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्लास, सॉरी, स्ट्रिंग सब्जेक्ट इक्वल टू पाइथन, मैंने ना यहाँ पे प्राइवेट लिखा, ना पब्लिक लिखा, ना प्रोटेक्टेड लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा, दिस बाय मैंने बाय डिफॉल्ट इट एक्ट्स एज ए डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, दिस एक्ट्स एज ए डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। अब डिफॉल्ट का क्या एक्सेस लेवल है, is only within the package, it cannot be accessed from outside the package। हाँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्सेस लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, सो टेक्निकली डिफॉल्ट का सेम पैकेज में एक्सेस है, पब्लिक का हर पैकेज
हर सब क्लास कहीं भी एक्सेस हो सकता है बशर्ते यू नो हाउ टू एक्सेस प्राइवेट the access level of a private modifier is limited only within the same class. It cannot be accessed from outside the class. Protected का क्या है? The access level of a protected modifier or a protected whatever can be accessed within the package and outside the package subclasses. What are subclasses? अच्छा, मैंने जो वर्ड यूज किया ना प्रोटेक्टेड के लिए, सब क्लासेस का मतलब चाइल्ड क्लासेस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चाइल्ड क्लासेस, बशर्ते वो चाइल्ड क्लास हो और वो एक पर्टिकुलर पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा हो, देर आर लॉट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, अगर आपने ये सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास नहीं बनाया है और उसको नहीं एक्सटेंड किया हुआ है तो ये एक्सेस नहीं करेगा। तो आप उस आपको फॉर एग्जांपल मैं दूसरे आपको इसको समझाता हूँ। ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरेंट क्लास। मैं अभी यहाँ पर दूसरा पैकेज लूप्स में एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, सपोज एक क्लास का नाम है टेस्ट। मैं इसको चाइल्ड क्लास कैसे बनाऊं? अगर दिस चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स माई फर्स्ट अंडरस्कोर जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। ठीक है, ओके मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी जाके ये एक्सटेंड। वन सेकेंड, फर्स्ट अंडरस्कोर जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। ओके दिस इज नॉट राइट, एक सेकेंड, cannot be resolved to a type. Okay, sorry, वो import करना भूल गया था। So now this particular test class, test is a subclass or a child class. So this can access protected. अगर ये ऑप्शन नहीं होता इस चाइल्ड क्लास के पास, इस पोजीशन पे अभी मैं इसको सेव करूं तो नाउ दिस पर्टिकुलर यहाँ पे you will not be able to access protected. So that is what it means. So this is all about the different kind of access modifiers: public, private, protected, default. You can go about in Google and read. So I don't think you'll find much better explanation than this. So this is how this thing works. Okay, so I'm deleting this particular thing. So I'll leave it here. Now, when we go back, access modifier होता है public for main method. Now, what is static? Static is a keyword. As of now, I'll just tell you static is something which is a class property. इतना अभी ध्यान रख लो. Static is a class property. It is a class entity. As of now, everything what static is related to this particular class. So just itna for the time being, because I will teach you static and non-static very thoroughly. As of now, just itna जान लो, static is something related to this class. एक उसका relationship में है. What relationship, how it is differing from non-static, वो सब मैं तसल्ली से बताऊंगा when we learn static and non-static. But as of now, just know that static is something which is something related to this class. Just think this way. Void is a return type. What do you mean by return type in Java? Somebody will like to answer, someone who knows what is return type in Java. Ashraf, what is a return type? Hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. So technically easy भाषा में what is exactly return type? तूने तो बहुत complicated answer दिया. What is easy language? Yeah, yeah. Hmm. Hmm.
हम्म 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 हम्म। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देहाती भाषा में समझाता हूँ। ये जो फंक्शन है ना, और इसको मेथड बोलते हो, मेथड या जो फंक्शन जो भी बोलते हो, ये एक्चुअली क्या है ना, दिस दिस होल थिंग ना, दिस फंक्शन और दिस मेथड is nothing but a factory. This is a factory. Okay. So what happens is you do some, आपने लॉजिक लिखा है इधर, ठीक है। लॉजिक हम क्यों लिखते हैं? लॉजिक वी राइट टू रीच, टू डू सर्टेन, टू और टू अचीव सर्टेन एंड रिजल्ट, ठीक है। तो ये, और ये एंड रिजल्ट अगर लॉजिक फैक्ट्री के अंदर ही रह जाएगा तो मतलब क्या है? तो हमें ये एंड रिजल्ट निकालने के लिए ना, कि भाई एंड रिजल्ट मेरे को दे, क्या है ना, ये जो मेथड जो है ना, ये बहुत चालू चीज है। ये बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, जब तक तू मेरे को रिटर्न टाइप नहीं मांगेगा, ये एंड रिजल्ट में दूंगा ही नहीं। तो एंड रिजल्ट निकालने के लिए, इस फैक्ट्री का मेन प्रोडक्ट निकालने के लिए, एडिडास की फैक्ट्री अगर बंदी होगी, बाहर निकलेगा नहीं, तो अपन जूता पहन के घूम नहीं सकते ना। तो मान के चलो ये मेन मेथड और जितने भी मेथड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो लॉजिक होता है ना, टू फाइंड एन एंड रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट आपको चाहिए ना। तो जावा के डेवलपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एंड रिजल्ट चाहिए तो आपको एक रिटर्न टाइप फायर करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो एंड रिजल्ट है ना, ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अभी अशरफ ने बताया, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ठीक है भाई, वॉइड दे दो, लेकिन कुछ तो दो। तो कुछ तो आपको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके इस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसका एंड रिजल्ट आपको आउटपुट में दिखेगा। दैट इज वाई these return types are extremely important. Any doubts in this? Okay. So I hope everyone is clear as far as what is return type and all that. Okay. हम return types के बारे में मैं, yes please. हम्म 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 हम्म। So to answer your question, I will directly execute this in front of you. First and foremost, this will not any it will not, हाँ, क्योंकि एरर, एग्जैक्टली, वो पहले ही एरर थ्रो करेगा तो प्रिंट किसको करेगा बिना? देन ओके ओके, मैंने वॉइड डाल दिया, ओके। हाँ हाँ, पब्लिक F1 नॉन स्टैट। हम्म हम्म हम्म। अब तू F1 को कॉल करना चाहेगा? यू वांट टू कॉल इट इनसाइड ए वेरिएबल? व्हाट वेरिएबल यू वांट टू कॉल दिस? तो ये नॉन स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक मेथड मैंने बनाया है, तो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या तो मैं इसको स्टैटिक बना दूं। देख यार, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज एडवांसिंग, बिकॉज यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। व्हेन वी लर्न स्टैटिक एनालिटिक्स तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अशरफ। ठीक है, समझ गया ना? बिकॉज आई नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, बट आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिस बिकॉज अदर पीपल विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, ओके। सो एज ऑफ नाउ जस्ट इमेजिन, void is something as return type, ये एक फैक्ट्री है, अगर इसका एंड रिजल्ट चाहिए तो you need to specify void. Okay, this void, this is not specify void, a return type. Return types could be many, int, float, double, string भी return type की तरह काम करता है, we'll get to that. Okay, now what is this main?
मेन मैंने यहाँ पे बताया था, मेन इज नथिंग बट द नेम ऑफ द मेथड। नाउ इफ यू टेल मी सर नेम ऑफ द मेथड तो कुछ भी हो सकता है, आपने मेन क्यों लिखा? ठीक है, मैं आपकी बात मान के मेन अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे काम करूंगा, सिसो दिस इज द मेन मेथड। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एरर नहीं थ्रो करेगा क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन में कभी एरर थ्रो करता ही नहीं। नेमिंग कन्वेंशन में आप कुछ भी लिखो, लेकिन मैं आपको पुराने सेटअप पे चला जाता हूँ, यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो होगा क्या, अगर इसका आउटपुट ऐसे आएगा, राइट क्लिक, इफ आई रन एज जावा एप्लीकेशन, आप यहाँ पे आपको नीचे रिजल्ट मिलेगा दिस इज द मेन मेथड। ठीक है, बट अगर मैं इस नाम का चेंज करके मेन अंडरस्कोर 1 कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके दोबारा इसको रन करने की कोशिश कर, सॉरी सॉरी, अगर मैं इसको अगर मैं इसको दोबारा रन करने की कोशिश करूंगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक एरर थ्रो करेगा कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास जावा बेसिक्स। ये पैकेज जावा बेसिक्स में ये इस पर्टिकुलर क्लास में नहीं फाउंड कर रहा है, प्लीज डिफाइन द मेथड एज दिस। वो सीधा बोल दिया कि आप इसको एक इसी पर्टिकुलर वे में डिक्लेयर करो। तो टेक्निकली आप मेन मेथड का नामकरण नहीं चेंज कर सकते, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। आपको वही रखना पड़ेगा जो जावा ने स्पेसिफाई किया है, आप कुछ भी अलग नहीं रख सकते, यू हैव टू कीप इट मेन। यू कैन नॉट इवन मेक इट MAIN। तो यहाँ पर भी वही आउटपुट देखिए, मैंने दोबारा रन किया, सेम चीज आई। सो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स है ना, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे इन्होंने डिफाइन किया है। सो you'll have to write like this. Okay, so this is something about main method, this is not everything. अच्छा, one more thing now, देखो हमें इतना पता चल गया कि जो मेन मेथड होता है इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। अगर मेन मेथड नहीं है देयर विल बी नो एग्जीक्यूशन। मेन मेथड नहीं है तो एग्जीक्यूशन, बिकॉज दिस इज दी वूम्ब ऑफ जावा एग्जीक्यूशन। अगर मेन मेथड ही नहीं है तो एग्जीक्यूशन तो होगा ही नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग इज, मेन मेथड का कोई रिटर्न टाइप है क्या? आपको क्या लगता है मेन मेथड का रिटर्न, मेन मेथड का रिटर्न टाइप आपको लग रहा होगा वॉइड। जी नहीं, मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। हमें लगता है क्योंकि मेन मेथड के अंदर ही रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, तो मेन मेथड का ये रिटर्न टाइप नहीं है। क्योंकि मेन मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वॉइड स्पेसिफाई कर दिया। आपको जावा में इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, void is a part and parcel of the main method, does that mean the return type of main method is void? 99.99% people will say yes, the return type of main method is void. No, main method का कोई return type है ही नहीं। that is why we use void, because जिसका कुछ नहीं है उसके लिए void है। ओके, सो डोंट एवर से इन इंटरव्यू द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड इज वॉइड। बहुत लोग ये गलती करते हैं, डोंट डू दैट। ओके, और ये जो मेन है ना, ये इसका डिफॉल्ट नेम भी है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे डिफॉल्ट सिग्नेचर कहते हैं। सो somebody will ask you what is this, you tell them this is the default signature, this is the name, but the whole thing inside the bracket is known as signature of main method। ठीक है, और ये मेन मेथड है ना, स्ट्रिंग एरे पैरामीटर इन फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करता है। ये स्ट्रिंग एरे इन फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के इधर डाल दो, वो भी काम करेगा। दिस विल ऑल्सो वर्क। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आई विल गेट द आउटपुट दिस इज द मेन मेथड। अगर आप इसको हटा के यहाँ डाल दो और यहाँ से हटा दो तो भी काम करेगा। ठीक है, अभी इसको रन करो, दिस इज ऑल्सो विल वर्क। अभी अभी मैं इसको ऐसे करके रन करूं तो ये देखते हैं क्या आउटपुट आता है, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एरे के डिज़ाइन को ही चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है, आप चाहो तो इधर 1 2 3 डॉट्स दे सकते हो, और अगर रन करोगे तो भी ये काम करेगा। ओके, सो बट अगर आप इसमें 4 या 5 डॉट दे दोगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा। तो मैक्सिमम आप 3 डॉट दे सकते हो। मैं तो बोलूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट इट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है,
कोई इंटरव्यूअर ये कर देगा, इसको ऐसे हटा देगा और बोलेगा स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि विल दिस वर्क, तो आप लोगों ने सीखा है पब्लिक स्टैटिक, तो आप बोलोगे नो नो ये एरर थ्रो करेगा। एक्चुअली आंसर इज इट विल वर्क। Positioning of access modifier and this particular keyword does not matter in the main method. Okay, so these are some of the important interview questions related to main method, and all these things will actually work. So this is all about your main method and everything. इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं. Please watch this video carefully once I upload, because I have told a lot of things about this private, public, protected, default का क्या मतलब है. Okay, the class which I created, सब classes and all, वो जब object oriented programming करेंगे तब यहाँ से वहाँ पे आप relate कर सकते हो. But this is somewhat about, it will give you the beginning of your coding part. क्योंकि हम फिलहाल के लिए सारा चीज़ मेन मेथड के अंदर ही लिखेंगे, इसके अंदर ही लिखेंगे. अब आप बोलोगे सर फिर ये चीज़ें आपने यहाँ पे क्यों डिक्लेयर करी, यहाँ पे क्यों नहीं करी. ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसका जवाब मैं बाद में दूंगा. फिलहाल के लिए अ, अभी के लिए फिलहाल के लिए आप इतना देख लो. मैं इनको यहाँ से नहीं हटा रहा, लेकिन इसका जवाब मैं बाद में दूंगा. अभी फिलहाल आप ये ध्यान दे दो कि जो भी हम मेन मेथड में एग्जीक्यूट करेंगे वही चीज़ हमारा आउटपुट यहाँ पर होगा. कुछ भी आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो. जैसे इंट आई इक्वल टू आपने 10 दिया, ठीक है, इंट जे इक्वल टू आपने 20 दिया, और इधर सिसो कर दिया, आई को कॉन्कैटिनेट कर दिया जे के साथ, और इधर इसको रन किया तो आपका 30 आएगा आंसर. तो जो भी आप यहाँ कर, अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं सब बताऊंगा आपको. फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वही एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए जावा का मैंने और कुछ बोला था क्या, नहीं, आज के लिए जावा हमारा हो गया है. इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है. मैं बाद में अपने ग्रुप में एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के आपको दे दूंगा. वो आप अ, अपने एक एक वो जो सेलेनियम फोल्डर मैंने आप सबको बनवा रखा है ना, डू वन थिंग, वहाँ पे जो नोट्स है ना, वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं जो बोलते जा रहा हूँ ना, मैं सारा तो बैठ के लिख नहीं सकता, मैं जो बोलते जा रहा हूँ ना वहाँ पे नोट करते जाओ. एक एक क्लास में जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन हैं सारे नोट करते जाओ, क्योंकि उससे बाहर लोग पूछेंगे नहीं. ठीक है, तो अभी मुझे सेशन एंड करके मेरे को 2 सेकंड दो, मैं सेशन एंड करके दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि अपन लोग इसमें काम कर रहे हैं ना. सो मैं भी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ. ओके, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, एंड फॉर ऑल, एंड कनेक्ट इन अनदर 10 सेकेंड्स. ऑटोमेशन का करते हैं, ठीक है. मैंने उस दिन वीडियो में आपको क्या करवाया था ऑटोमेशन का. गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन? हेलो. ओके. ओके, सो टुडे मैंने उस दिन आपको बताया था सेलेनियम कैसे ओपन करते हैं यूजिंग क्रोम ब्राउज़र. सो यू कैन ट्राई दिस यूजिंग फायरफॉक्स एज वेल. फायरफॉक्स ब्राउज़र में कैसे इसको ओपन करते हैं, यू कैन ट्राई दिस एज वेल. ठीक है, सो समबडी, देखो फिलहाल के लिए तो आंसर वही है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी. Instead of webdriver.chrome.driver, you will have to write webdriver.geeko.driver, और यहाँ पे you will pass the path of the web geekodriver.exe. मेरा geekodriver.exe कहाँ पर है मैं दिखा देता हूँ. मेरा डी ड्राइव में सेलेनियम पे, यहाँ ब्राउज़र ड्राइवर्स में होगा गीको ड्राइवर. अच्छा, मेरा कॉमन ड्राइवर्स में मैंने सारे डाल रखे हैं. मैंने उठाया, कॉपी किया ये पाथ, मैंने डाला // गीको ड्राइवर डॉट ई. इसको सेव किया, देखिए यहाँ पे है गीको ड्राइवर डॉट ई. मेरे एक्सटेंशन एकदम सही है, ठीक है. और इधर मैंने फिर लिखा वेब वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू
फायरफॉक्स ड्राइवर, वहां पे क्या था, क्रोम ड्राइवर था, कंट्रोल शिफ्ट ओ, फिर मैं यहाँ पे, सॉरी, मैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ड्राइवर डॉट कोई भी यूआरएल ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से अशरफ की जो सबसे फेवरेट यूआरएल है flipkart.com। I know. So what I'm trying to do is I'm trying to, acha, do we have everyone in here or somebody is still trying to come in? Okay, we have everyone. Okay. So this is, हमने last time Chrome के लिए लिखा था, I'm writing it out for Firefox. Generally we will automate using Chrome or Firefox. For Microsoft Edge and other things, I have lot of videos in my this thing, you can go and refer। मैं उन चीज़ों को यहाँ बताने नहीं चाहता because it is unnecessary waste of time। करोगे तो आप Chrome और Firefox पे ही, these are the ones which will test। अगर आपको फिर भी सीखना है, it is the same pattern, थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस होंगे और कुछ नहीं, इसका क्लास अलग होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, और उसका ये अलग होगा और ये अलग होगा, और कुछ नहीं होगा, तो आप अलग अलग ब्राउज़र पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको रन करूँगा, मेरा फायरफॉक्स बहुत ही कमज़ोर है, तो ये बहुत टाइम में खुलेगा, तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर ऑटोमेशन इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑटोमेशन। अच्छा, टू बिकम ए वेरी गुड ऑटोमेशन इंजीनियर देर आर सर्टन थिंग्स विच यू शुड बी वेरी वेरी नॉलेजेबल अबाउट। कोई भी वेबसाइट उठा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल openweathermap.org, if you are going into a project and your project people say कि fine, I want to automate this, see this stupidity of लाइफ, ऑटोमेशन इंजीनियर की लाइफ लॉगिन फंक्शनैलिटी, यूजर नेम पासवर्ड से बढ़ के है, बहुत ज़्यादा बढ़ के है, लेकिन ये सिनारियो को हम ऑटोमेट करेंगे, बट लाइफ यहाँ पे सीमित नहीं है। So if you really want to think about being an automation engineer, you have to think beyond this। जनरली सब लोग इसी पे ही सीमित हो जाते हैं क्योंकि इजी होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे सीमित नहीं करना चाहता। सो तो इफ यू वांट टू रियली बिकम ए वेरी गुड ऑटोमेशन इंजीनियर, यू शुड नो व्हाट योर एप्लीकेशन सजेस्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, the first and foremost thing is you have to know the DOM, document object model of your website which you want to automate. Okay, so I will write these steps. First steps to become a good automation engineer. The first step is you should know your DOM. These are first steps. आपको अपने DOM, what is DOM? DOM is nothing but document object model। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो ना कहीं पर भी, तो ये जो एलिमेंट सेक्शन आता है ना, इसे डॉम कहते हैं। और डॉम बेसिकली तीन चीज़ों में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका, ये HTML टैग्स होते हैं, हेड में होता है, ठीक है, ये HTML टैग हेड में बंद हो गया, और यहाँ पर आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी टैग बंद हो गई, ठीक है। जनरली हम ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए आपका बॉडी में ही काम हो जाता है, ठीक है। मैं अगर इसको मैं सारा को मिनिमाइज कर दूं, ठीक है, ये आई फ्रेम छोड़ दो, ये तो ऐसे ही है। ये मेनली HTML टैग्स होते हैं, और ये दो मेन चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी। हमारा ऑटोमेशन स्कोप इसमें है, बॉडी में, इधर ही है हमारा ऑटोमेशन स्कोप। इसको हमारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये HTML या UI डेवलपर्स के लिए सरदर्दी है। हमारा स्कोप यहाँ पर है, हियर इज आवर स्कोप। सो यू शुड नो व्हाट योर बॉडी इज। तो आप मान लो यहाँ पे ओपन वेदर का एक देखिए, ये ओपन वेदर है। मैं आपको बोलूँ कि ओपन वेदर पे क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट करो, आप राइट क्लिक करोगे?
इंस्पेक्ट करोगे, तो इंस्पेक्ट करोगे तो डॉम में हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर फेल, तो आप देखोगे इसका HTML टैग है IMG। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी कॉपी एलिमेंट, और मैं नोटपैड में डाला, सॉरी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो IMG है ना, जो चिपक के लगा हुआ है ये टैग के साथ, दिस IMG, दिस इज द HTML tag of that web element. What is a web element? Everything is a web element. This image is a web element. This search button is a web element. These things are web elements. Everything are web elements. मैं पूछूंगा आपसे what are different types of web elements that you know. But अभी फिलहाल के लिए इतना बता रहा हूँ. This IMG is nothing but the HTML tag of that particular web element. What is SRC? SRC is nothing but the attribute. This is the attribute of that web element, one of the attributes, क्योंकि इसमें is one of the attributes of that web element, and this whole damn thing which is equal to, this whole damn thing is nothing but the, this thing, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, this whole thing, this is the value of that attribute SRC। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया, IMG is the HTML tag, this is the attribute, this is the value of that particular attribute। फिर आप पूछोगे कि one of the attributes का क्या मतलब, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये गाइड वाला जो लिंक है ना, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा होगा, मैं इसको कॉपी करके कॉपी एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको माइनस करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा होगा। ये A है, इज दी HTML टैग, A इज दी HTML टैग, ठीक है, और एंकर टैग वट। यहाँ पर आप जो देखो ये A जो लाइट पिंक में है, href इज एन एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू है फॉरवर्ड स्लैश गाइड। ऑन क्लिक इज अनदर एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू है अंडरस्कोर GAQ डॉट पुश, ये इतना बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो दो एट्रीब्यूट कैसे हैं, ऑरेंज में लिखा है href इक्वल टू ऑन क्लिक इक्वल टू, दो एट्रीब्यूट्स हैं और ये इन दोनों एट्रीब्यूट के रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू बी ए ऑटोमेशन इंजीनियर। अब आप पूछोगे सर ये जो सर्च बॉक्स है इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ठीक है इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आया, इसका HTML टैग क्या है, इनपुट। इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट है, एक नेम एट्रीब्यूट है, एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। और नेम टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, क्यू। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, वेदर इन योर सिटी। तो हर एक वेब एलिमेंट का एक HTML टैग होता है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है, उसका एक वैल्यू होता है। मैंडेटरी नहीं है बट 95% केसेस में होते हैं इनके एट्रीब्यूट और वैल्यूज, जो कि कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत चेंज हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि चेंज नहीं हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक rediff.com वेबसाइट पे ओपन किया, यहाँ पर एक साइन इन लिंक आपको दिख रहा है, मैं राइट क्लिक किया, इस लिंक को इंस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉम पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इसका ये खुल गया, साइन इन एक लिंक है, लिंक का HTML टैग है A, इस साइन इन लिंक का HTML टैग A है, इसका href इज एन एट्रीब्यूट और ये इसका वैल्यू है, टाइटल इज अनदर एट्रीब्यूट और ये इसका वैल्यू है, क्लास इज एन एट्रीब्यूट और ये उसका वैल्यू है। फिर आप बोलोगे सर ये साइन इन क्या है, ये टेक्स्ट होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है, टेक्निकली ये इसका रेप्लिका होता है जो यहाँ पे लिखा होता है। जब हम एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन ऑटोमेशन इंजीनियर बनने से पहले आपको अपनी डॉम की समझ होनी चाहिए। ये डॉम की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैंने पहले ही इतना तवज्जो क्यों दिया, क्योंकि बाद में डायरेक्टली अगर एक्सपाथ में घुसूंगा, अगर आपको डॉम के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्या करना, कोई भी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट, जैसे rediff.com का ये जो लिखावट है, होम पेज का जो लिखावट है, इसको अगर इंस्पेक्ट करना चाहो, इंस्पेक्ट कर दिया आपने,
तो देखो यहाँ पे दिख रहा है span is the HTML टैग ऑफ दिस rediff.com लोगो, और इसका एक एट्रीब्यूट है क्लास जिसका नाम है hamsprite स्पेस लोगो। ठीक है, तो ये उसका एट्रीब्यूट हो गया और उसका पर्टिकुलर वैल्यू हो गया और उसका HTML टैग स्पैन हो गया। अब मैं आपको और एक चीज, आप क्या करो, इसको मिनिमाइज कर दो। जो भी डाउनवर्ड है ना वो एक्सपैंडेड है, इसको आप ऐसे करोगे ना मिनिमाइज हो जाएगा। जितने भी डाउन को है ना वो एक्सपैंडेड रहते हैं। देखो आप ऐसे करते जाओगे तो धीरे 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 सारे कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो इस पर क्लिक करो, इसके अंदर ये खुल गया इस पर क्लिक करो, इसके अंदर ये खुल गया इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे जो डाउनवर्ड फेसिंग एरो है ना वो एक्सपैंडेड वर्जन है, और जो राइट फेसिंग एरो है, ये राइट फेसिंग एरो है, वो इसके कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है। ठीक है, आपका, आप चाहे कुछ भी कर लो, मनी को इंस्पेक्ट करना चाहो तो ये मनी के लिए है। मनी में क्या है, एंकर टैग विच इज ए, इसका HTML टैग, href is an attribute with this value, title is an attribute with such a big value, on click is another attribute, class is another attribute with this value. So this is what you need to know कि जो भी एलिमेंट आप इंस्पेक्ट करते हो या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो या फिर आप क्रोम इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट कर सकते हो। इट इज अगेन अप टू यू, मैं दोनों यूज करता हूँ जो मुझे ठीक लगे। एंटरप्राइज ईमेल को इंस्पेक्ट कर दिया तो ये आ गया, देखो ये एंकर टैग इसका है और इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं ऑरेंज वाले, और उनके रेस्पेक्टिव जो ब्लू कलर हैं वो उनके वैल्यूज़ हैं। तो जब तक आप इन एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ को अच्छे से नहीं समझोगे ना, आप कभी भी अच्छे ऑटोमेशन इंजीनियर नहीं बन सकते। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। This is one way of knowing your document object model. It is one of the most important ways of knowing your to become. You should know your DOM. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आप ऐसे राइट क्लिक करके उन्होंने इंस्पेक्ट एलिमेंट ब्लॉक कर रखा होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप यहाँ पे जाके मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका डॉम खुल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत डेवलपर्स राइट क्लिक ही, यहाँ पे राइट क्लिक खुल गया तो खुल गया ना, बहुत डेवलपर्स राइट क्लिक पे काम नहीं करेगा। और यही चीज़ अगर आप F12 भी करोगे ना, मैंने F12 दबाया तो भी खुल जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मेनी डेवलपर्स व्हाट दे डू, दे विल डिसेबल राइट क्लिक। तो राइट क्लिक माउस में डिसेबल हो गया तो ऑब्वियसली इंस्पेक्ट एलिमेंट आपका जा चुका है, कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर यहाँ पे, मैं क्रिएट अकाउंट पे राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो तभी खुला। मान लो डेवलपर ने राइट क्लिक ही हटा दिया हो तो कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, दे डिसेबल F12। F12 क्लिक करने पे, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं F12 दबाया ना, आप भी F12 दबा सकते हो, आपका डॉम खुल जाएगा। व्हाट दे डू इज दे डिसेबल F12 ऑल्सो, आपको F12 पे भी नहीं खुलेगा। तो इन दैट केस व्हाट यू डू, यहाँ पे जाइए आप, जो तीन वर्टिकल बटन्स हैं यहाँ पर होगा सेटिंग्स, सॉरी मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स, इसको ये डिसेबल नहीं करते। आप एक बार यहाँ पे आ जाओ, तो आपको क्रोम इंस्पेक्टर के थ्रू वो करना पड़ेगा। क्यों क्रोम इंस्पेक्टर, क्यों यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, क्योंकि राइट क्लिक तो बंद कर रखा है ना भाई, ये तो खुल गया, तो अभी आपको इसके सहारे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे यू कैन चूज, यू कैन ईदर चूज टू राइट क्लिक mouse and inspect your element, or else you can use Chrome inspector. It is up to you. This gentleman is present over here on the top left header of the DOM, यहाँ पर मौजूद है। तो यू कैन क्लिक हियर, वंस इट क्लिक्स हियर, आप माउस होवर करोगे वो कहीं पर भी जाएगा, वो आपको दिखाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। आप बोलोगे यहाँ क्लिक करना है तो जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। So this is one way of getting to know your DOM. If you know your DOM, you will be a very good automation engineer. If you do not know your DOM, you cannot be a very good automation engineer, and this is very true. Okay, so now this part is something, okay, I think you have taken a screenshot or whatever it is. Video recording ho hi rahi hai. So this is one way of becoming a very good automation engineer. What is the next step of becoming a very good automation engineer? What is the next step? You should be thorough in your language binding. What is language binding with, in our case, Java? आप जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे तो ऑटोमेशन विल बिकम ए चाइल्ड्स प्ले। अगर आप जावा ठीक से नहीं समझ रहे हो
and you are jumping directly into automation, it is like you do not know how to swim and you are jumping into a river. So आपको अपना जावा भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. दिस इज इफ यू बिकम ए वेरी गुड जावा, कोर जावा, ठीक है, कोर जावा नॉट एडवांस जावा, तो एटलीस्ट कोर जावा तक आप स्ट्रांग हो जाओ तो आपके लिए ऑटोमेशन विल बिकम ए चाइल्ड्स प्ले. दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. थर्ड, व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? बी रेडी टू अपग्रेड. नहीं, मैंने सेलेनियम 2.43 पे ही काम किया था, मैं अपग्रेडेड, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं जाना चाहूँगा. नो, यू कैन नॉट डू दैट. You have to upgrade with the regular upgradation. That is why people stay back. Then politics starts coming into picture. That is the reason why manual testers, those who are not ready to upgrade themselves into automation testers, they remain with a salary of less than 8 lakhs. Being 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस में भी 7-8 लाख पे रहते हैं, और ऑटोमेशन इंजीनियर्स 3-4 साल के एक्सपीरियंस में 15 लाख प्लस पे काम करने लग जाते हैं. दैट इज द रीजन वाई. Always be ready to upgrade. Automation engineers can never. Okay, shut up. मिलता है. Okay, so I'm saying कि 3 साल ऑटोमेशन एक्सपीरियंस में भी उसने 2 साल काम किया मैनुअल पे. So it is a possibility. Again, it totally depends. अलग अलग कंपनीज में, जैसे कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में नौकरी ढूंढ रहे हो, ऑब्वियसली बात है भाई, सैलरी लेस आएगी ना, सैलरी लेस आएगी बैंगलोर से. ऑब्वियसली बात है यार. अगर आप अगर आप दिल्ली एनसीआर से आप और चंडीगढ़ चले जाओगे, चंडीगढ़ की सैलरी आपको दिल्ली एनसीआर से कम मिलेगी. वो तो फैक्ट है भैया. जो आईटी हब है वहां पर वही देखो, जो प्रथा जहाँ की है वही होगा ना. अब साउथ इंडियन खाना दिल्ली में आपको बेटर मिलेगा कि आंध्रा में आपको बेटर मिलेगा? ऑब्वियसली बात है आंध्रा में बेटर मिलेगा. अब नॉर्थ इंडियन खाना आपको आंध्रा में बेटर मिलेगा या दिल्ली में? ऑब्वियसली दिल्ली में. तो बात वही है ना, आईटी हब इंडिया का क्या है? बैंगलोर. आप दिल्ली में ही सर फोड़ोगे तो वही होगा. सिंपल सी बात है. देखो, 3 साल 4 साल 5 साल डज नॉट मैटर. आप अगर ऑटोमेशन इंजीनियर अच्छे बनना चाहते हो तो टेक्निकली यू हैव टू डिसाइड कि आप अपना करियर पाथ क्या है. आप बहुत ज़्यादा होम सिक हो, आप मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ रिलोकेशन टू योर आईटी हब प्लेसेस. तभी आपका करियर ग्रो कर पाएगा. मे बी इट इज़ ए कंस्ट्रेंट फॉर सम, डज नॉट मैटर. आजकल पैंडेमिक के चक्कर में वी आर वर्किंग पैन इंडिया, दैट डज नॉट मैटर. बट एनीवेज, द सैलरी यू विल गेट इन बैंगलोर यू विल नेवर गेट इन चंडीगढ़ और दिल्ली और लखनऊ. लखनऊ में भी आईटी खुल गया है काफ़ी. You will never get. That is the fact. But be ready to, relocate. That is one thing. Be ready to upgrade. And this upgrade is from manual testing to becoming automation testing to becoming even ETL tester to becoming performance tester to becoming security tester. And then you are also planning to move into cloud computing as well. ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपग्रेड करती रहनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल सीवी में सब कुछ मांगते हैं. एक बंदे को सब कुछ आना चाहिए. अगर सब कुछ नहीं आता, किसी में भी प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है कि वो नौकरी किसी और को मिल जाए, क्योंकि वो दूसरा बंदा वो सब कुछ सीख के इंटरव्यू देने के लिए तैयार है. सो लर्निंग इज समथिंग विच शुड नेवर स्टॉप. दीज आर द फैक्ट्स विच विल मेक फॉर योर ऑटोमेशन इंजीनियर परस्पेक्टिव. सो ठीक है, अभी ज्ञान भाषण ज़्यादा हो गया, बट जो भी है, मैंने ये डॉम का सिलेक्शन क्यों बताया, क्योंकि सैटरडे को मैं आपको सेलेनियम पे, ऑटोमेशन पे बहुत गहराई से बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. जावा भी पढ़ाऊँगा. जावा हमारा होगा. तो मैंने अभी एक नया फंडा डिसाइड किया है. थोड़ा फ़नी है, बट ये फ़नी फंडा कैसा है, जूम के 40 मिनट्स फर्स्ट ब्रेक, जूम के 40 मिनट्स के फर्स्ट ब्रेक में हम जावा पढ़ेंगे. जब जूम वापस आएगा फिर हम ऑटोमेशन करेंगे. ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे. तो पहले वाले में हम लोग ने जावा किया, दूसरे वाले में मैंने थोड़ा ऑटोमेशन का बेसिक चीज़ बताया. अभी मैं ज़्यादा और ऑटोमेशन में नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क भी सबमिट नहीं किया. मैंने उस दिन बोला था कि अभी 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 क्लास से पहले एक बंदी ने, क्या नाम है, सुमन ने, पता नहीं किसी ने होमवर्क सबमिट किया था, क्योंकि आपको लगता है बहुत बेसिक चीज़ है. लेकिन मैं, अगर आप ये चीज़ 15 दिन मत करो ना, तो ये लाइन ऑफ कोड आपको याद नहीं रहेगा. और इस लाइन ऑफ कोड में आप लोग इसको, मैं बोल दिया केस सेंसिटिव है,
तो कोई इसको W को यहाँ पे D को कैपिटल कर देगा क्योंकि यहाँ पे D कैपिटल है। ये सारी चीज़ें को अवॉइड करने के लिए देखो यहाँ पे सारी स्मॉल है और यहाँ पे W कैपिटल है, D कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला था कि आप एक एक चीज़ को खुद बार बार प्रैक्टिस करो। लोग क्या करते हैं, ओके कॉपी पेस्ट पेस्ट। मैंने कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको असाइनमेंट नहीं दिया था। कॉपी पेस्ट तो मैं भी कर लूंगा, अलग अलग क्लास बना के उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप शुरुआती दौर में ये सब एक एक लाइन खुद लिखो। कॉपी पेस्ट करने से आपको रिमेम्बरेंस नहीं होगी। लोग यही करते हैं और फिर भूल जाते हैं, अरे क्या था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने देखा है लोगों को सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी लिखने के बाद स्ट्रिंग बना देते हैं और ये वैल्यू गलत लिखते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं है क्या लिखना है। कभी कैपिटल कर देते हैं, जेको का सी भूल जाते हैं और कभी डॉट छोड़ देते हैं। वो सारी चीजें होती है क्यों? क्योंकि ये जमाना है आप लोगों का, यही चल रहा है आप लोगों में। कंट्रोल वी करते रहोगे तो भैया यही चलता रहेगा। प्रैक्टिस करो, एक एक चीज खुद से टाइप करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को यहाँ ही पॉज करता हूँ। हम सैटरडे को दोबारा मिलेंगे।